بزرگوں، بہنوں اور مسلم لیگ نون کے شیروں، السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں کہ میں منڈی بہاؤالدین آج پہلی بار آئی ہوں، پہلی بار، اور مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں پہلے منڈی بہاؤالدین کیوں نہیں آئی۔ جس طرح مسلم لیگ نون کے یہ شیر تپتی ہوئی دھوپ میں، گرمی میں، روزے کی شدت میں، پیاس میں، بھوک میں آج اپنے لیڈر محمد نواز شریف کے لیے نکلے ہیں، میں آپ سب کے جذبے کو سلام پیش کرتی ہوں۔ اور منڈی بہاؤالدین کے میرے بہت پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، کیونکہ یہ افطار کنونشنز میں ٹائم کم ہوتا ہے، افطار کا وقت قریب آ رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میاں صاحب کو، مجھے پتا ہے آپ میاں صاحب کو سننا چاہتے ہو، لیکن چند باتیں میں ضرور کہنا چاہتی ہوں، میری بات دھیان سے سننا۔ فیصلے کی گھڑی نزدیک آ رہی ہے، 25 جولائی کو ریفرینڈم ہے نا؟ 25 جولائی کو فیصلے کی گھڑی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے لیڈر محمد نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اور ایک ویزے کے اوپر آپ کے ووٹ سے آئے ہوئے نواز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس سے اٹھا کر باہر پھینک دینا زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ ایک دفعہ یک آواز ہو کر بتا دو، زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ نون لیگ جیتے گی، انشاءاللہ نون لیگ جتنا نا۔ بھائیوں، منڈی بہاؤالدین کے میرے بھائیوں، بہنوں، یہ صرف نواز شریف کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یہ ہر اس نمائندے کے ساتھ زیادتی ہے جو آپ کے ووٹ لے کے ایوانوں میں آتا ہے۔ اس کو، آپ کے ووٹ سے آنے والے نمائندے کو گرانا کتنا آسان ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے نا؟ 5 لوگ بیٹھے اور کہتے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، وہ جو ایک خیالی تنخواہ ہے، جو نواز بیٹے سے بھلا کوئی تنخواہ لیتا ہے بیٹے سے تنخواہ؟ اور کہاں یہ الزام لگا کر کروڑوں ووٹ لے کے آنے والے کو، آپ کے ووٹ سے آنے والے کو اٹھا کر وزیر اعظم ہاؤس سے باہر پھینک دو اور کہو کہ تم نااہل ہو چکے ہو۔ اور دوسری طرف میرے بھائیوں، میری بات دھیان سے سننا، اور دوسری طرف کل پاکستان کے سب سے بڑے جج نے یہ کہا کہ جس نے ایک بار نہیں 2 بار آئین توڑا، جو کمر درد کا بہانہ بنا کر ملک سے فرار ہو گیا، جس نے ججوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور 60 ججوں کو پین کی ایک لکھائی سے گھر بھیجا، جس نے 12 مئی کو کراچی میں قتل عام کیا، جس نے پیسوں اور ڈالروں کے عوض ہمارے ہم وطنوں کو، پاکستانیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو امریکہ کے ہاتھ میں بیچا، جس نے پاکستان کو دہشت گردی کا تحفہ دیا، جس نے پاکستان کے اندر مہنگائی اور جس نے یہ لوڈ شیڈنگ کے تحفے دیے پاکستان کو، اس کو کہا جا رہا ہے جو قانون کو آنکھیں دکھاتا ہوا فرار ہو گیا، اس کو کہا جا رہا ہے تم پاکستان آؤ،
अपने कागजात जमा कराओ, इलेक्शन लड़ो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। और दूसरी तरफ आपके वोट से आने वाला नुमाइंदा नवाज शरीफ वो बैठा है जिसको आपने वोट दिया था, जिस पर आपने इत्मीनान का इजहार किया था ना, जिसने 4 साल साजिशों के बावजूद, बहुत बड़ी साजिशों के बावजूद, ये बात मैं आपको बता दूं मंडी बहाउद्दीन वालों, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और होता, उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिशें होती तो कब का मैदान छोड़ के भाग चुका होता। नवाज शरीफ न सिर्फ डटा हुआ है, बल्कि उसने साजिशों के बावजूद 2013 में आपसे जो वादा भी किया, उसको अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरा किया। 2013 में उसने वादा किया कि वो दहशतगर्दी के अंधेरे खत्म करेगा। दहशतगर्दी के अंधेरे खत्म किए या नहीं किए? याद है ना 2013 का पाकिस्तान, जहां पर मंडी बहाउद्दीन में और पूरे पाकिस्तान में 22 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। याद है ना वो पाकिस्तान? और अब जिस दिन तक नवाज शरीफ का वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी था, वादा निभाया और लोड शेडिंग के अंधेरे पाकिस्तान से दूर किए। अब अगर जो इल्जाम लोड शेडिंग का मुस्लिम लीग नून पे लगा रहे हैं, उनसे सवाल जरूर पूछना कि जिस घंटे तक, आखिरी मिनट तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो लोड शेडिंग कंट्रोल में थी या नहीं थी? तो अब भाइयों, फैसले की घड़ी आ गई है। ये जो पनामा और इकामा का ड्रामा रचाया है ना, इससे नवाज शरीफ को अल्लाह ताला के फजलो करम से और आपके साथ खड़े हो जाने की वजह से, आपके डट जाने की वजह से नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जिस नवाज शरीफ को नाअहल किया था ना, वही नवाज शरीफ आज पाकिस्तान के हर हल्के से उम्मीदवार है। बल्कि नवाज शरीफ के साथ साथ जिस हल्के से नवाज शरीफ का शेर इलेक्शन लड़ रहा हो, याद रखना उस इलेक्शन से जमहूरियत उम्मीदवार है। नवाज शरीफ का नाम कोई नाअहली आपके दिलों से नहीं मिटा सकती, क्योंकि नवाज शरीफ का नाम पाकिस्तान के हर शहर में जो तरक्कियाती मंसूबे हैं, उन पे पूरी आबोताब से चमक रहा है। उस नाम को कोई नाअहल नहीं कर सकता। और भाइयों, फैसला कर देना, 25 जुलाई को फैसला कर देना कि आईन तोड़ने वाले चाहिए, कि आईन की हुक्मरानी के लिए डट जाने वाला चाहिए। वोट की हुर्मत की बात करने वाला चाहिए, वोट की हुर्मत के लिए खड़े हो जाने वाले चाहिए, वोट की हुर्मत के लिए अपने सीने पर सब वार लेने वाला चाहिए, या वोट की हुर्मत को जूतों के नीचे रोकने वाले चाहिए। फैसला कर देना कि आपको आपकी हुक्मरानी चाहिए या फिर आपकी हुक्मरानी का हक छीनने वाले चाहिए। अंधेरे देने वाले चाहिए या अंधेरे दूर करने वाले चाहिए। अमन चाहिए या दहशतगर्दी लाने वाले चाहिए। आईन का रखवाला चाहिए, आईन की बात करने वाला चाहिए, आईन की खातिर स्टैंड लेने वाला चाहिए, या आईन को तोड़ के फरार हो जाने वाला चाहिए।
की खिदमत की, 100 से ज्यादा पेशियों में वो नैब में पेश हुआ, अपनी बेटी के साथ पेश हुआ, और फिर भी उसके खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। तो आइन तोड़ने वाला चाहिए या आइन की रखवाली करने वाला चाहिए? और आपको पता है, मेरी वालदा का जो कीमोथेरेपी है और रेडियोथेरेपी है वो अब खत्म हुई है। तो अब जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनके टेस्ट करने हैं। हमने कल ये अदालत में दरख्वास्त दी कि हमें 3 दिन की छुट्टी दी जाए। आपको पता है कि नैब की तरफ से क्या जवाब आया? उन्होंने कहा कि छुट्टी नहीं दे सकते, ये कहीं फरार हो जाएंगे। मुझे ये बताओ कि जो 100 से ज्यादा पेशियां भुगत चुका हो बेटी के साथ, बीमार बीवी को छोड़ के आके यहाँ कानून का सामना कर रहा हो, वो अदालत से इजाजत लेकर फरार होगा? बताओ। और फिर ये कहा गया कि कलसूम नवाज की जिंदगी को कोई खतरा लाहक नहीं है, वो कैंसर से लड़ रही है मेरे भाइयों, और कहा गया कि उसकी जिंदगी को कोई खतरा लाहक नहीं है, इसलिए इनको जाने की इजाजत ना दी जाए। फिर भी भाइयों, नवाज शरीफ खड़ा है, लड़ रहा है। बस 25 जुलाई को फैसला कर देना कि आपको नीचे जाता हुआ मुल्क चाहिए। जिस दिन से नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ के आया है, मुझे बताओ ये मुल्क ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? तो पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन चाहिए या पाकिस्तान की तरक्की का जामिन नवाज शरीफ चाहिए? बस 25 जुलाई को आंधी और तूफान की तरह घरों से निकलना, शेर पर मोहर लगाना, उम्मीदवार मत देखना, बस उस शख्स को वोट देना जो जमहूरियत की जंग के लिए, आपके हक हुक्मरानी के लिए, आपके वोट की हुर्मत के लिए नवाज शरीफ का साथी बन के खड़ा है। उस शख्स को वोट देना जो मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ को छोड़कर नहीं गया। उस आदमी को वोट नहीं देना जो मुश्किल वक्त में लोटा बनकर दूसरी जमात में जाके बैठ गया। और मेरे भाइयों ये आखिरी मौका है। इधर आपकी नस्लों ने रहना है, मेरी नस्लों ने रहना है। हम इसी मिट्टी में से उठे हैं और इसी मिट्टी में हमें वापस जाना है। तो हमें वो वाला पाकिस्तान नहीं चाहिए जहां अदल की हुक्मरानी ना हो, जहां पर आइन की इज्जत ना हो, जहां आपके वोट की इज्जत ना हो। तो वादा करो कि अगर वोट की हुर्मत बहाल नहीं होती तो छीन के लोगे 25 जुलाई को। वादा करो कि अपने वोट की इज्जत के लिए निकलोगे। वादा करो कि हर साजिश को, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश को, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश को, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिश को नाकाम बना दोगे। और आखिरी बात, सिर्फ वोट नहीं डालना, इस बार वोट नहीं डालना, इस बार वोट के ऊपर पहरा भी देना है। वोट डाल के घर को नहीं आना जब तक जमहूरियत का, वोट के हक के हुक्मरानी का, आपकी हुक्मरानी का फैसला ना हो जाए। घरों को वापस नहीं आना मेरे भाइयों, घरों को वापस नहीं आना। वादा। चलो मेरे साथ ये गाना लगा दीजिए, वोट को इज्जत दो।
हमीदा वहीदुद्दीन जिंदाबाद, तारड़ साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।